Before us is the monument of the Battle of Plassey. The battle which sealed the fate of the Bengal Nawabs and made Robert Clive the uncrowned emperor of Bengal, Bihar and Orissa. With the passage of time, except the banyan tree, all signs of the great battle are lost. But in the memories of the local people, as well as in the pages of history, the political transition around the Battle of Plassey is very much alive. Aurangzeb's death in 1707 signaled the disintegration of the Mughal Empire. Among the various regional states that came up, Bengal emerged as an independent state under Murshid Quli Khan. Murshid Quli, known for his efficiency in revenue administration, rose from the position of Diwan to Subedar or governor of Bengal. He shifted his capital from Dhaka to Muqsudabad around 1705 AD. ये जो मुर्शिदाबाद का जो शुरुआत हुआ ये मुर्शिद कुली खां से हुआ और 1704 में जब मुर्शिद कुली खां आए थे तभी से शुरू हुआ था। तो मुर्शिद कुली खां के बाद Murshidabad's close proximity to Qasim Bazar, the chief emporium of the Gangetic trade, might have influenced Murshid Quli to make Murshidabad capital of Bengal, Bihar and Orissa. Palaces, public office and religious institutions gradually flourished in the new capital. However, except Katra Mosque, other monuments built during Murshid Quli's reign failed to survive. This Katra Mosque is standing on a 54-meter high square plinth. This brick-built mosque is surrounded by a row of double-storied dome cells. Four huge minars were built at four corners. Out of this, only two are now surviving. The mosque is approachable by a flight of 14 steps from the east. Below the steps of the mosque is lying the mortal remain of Murshid Quli Khan. Some of the roofless halls attached to the mosque were used as madrasa. Nawab's independent rule in Murshidabad was of about 50 years only. Most prominent among the Nawabs were Murshid Quli Khan, Alivardi Khan and Siraj-ud-Dawla. Even this short span of the Nawabi rule witnessed many threats from outside, like the Maratha invasion during Alivardi's time, the attack by the English East India Company during Siraj-ud-Dawla's reign. Apart from the external threat, undercurrents of conspiracy and factionalism within the Nawab's court further weakened the strength of the Bengal Nawabs. This was the time when the English East India Company was trying to consolidate its foothold
in Bengal. In Bengal, the English East India Company first established its factory at Hooghly. From Hooghly, they then moved on to Calcutta. Job Chanak, the agent of the English East India Company, got permission from the Mughal Emperor to take 3 villages, Sutanati, Kolkata and Govindapur, on payment of rupees 1200 annually to the local zamindar. Kolkata's proximity to the river route and local weavers and traders who were already trading from this area influenced Chanak to make Kolkata the center of the expanding British Empire. With the permission of the Mughal Emperor, the East India Company built Fort William at Kolkata to protect the company business. However, growing commercial interest of the company, particularly the misuse of trading privileges by the company officials, strained the relations between the company and the Nawabs. Getting no response to his complaints against misuse of trade privileges, Siraj-ud-Daulah, in a surprise move, attacked the Fort William in 1756. However, Kolkata was quickly recaptured by the British, sending more troops from Chennai under Colonel Robert Clive. But unfortunately, inside the Nawab's court at Murshidabad, conspiracy to dethrone Siraj-ud-Daulah was going on. Ghasiti Begum, Mir Jafar, along with the merchants like Jagat Seth and Omi Chand, conspired with the East India Company officials. Unaware of this conspiracy, Siraj-ud-Daulah, with the help of French company at Chandanagar, wanted to fight back against the British. The battle which took place in the field of Plassey in June 1757 was easily won by the British. The heroic sacrifices of Nawab soldiers like Mohan Lal and Mir Madan failed before the conspiracy of Mir Jafar and others. Siraj was deposed and assassinated. Mir Jafar was made the Nawab of Bengal by the English East India Company. Between 1757 and 1765, nothing could be done to protect a succession of Nawabs from ruthless demands of concessions. Nawab Mir Qasim made a last effort to come out of the clutch of the company officials, but lost the Battle of Boxer to the company in 1764. The military control of the Ganges Delta, won at Plassey, shortly received imperial legitimacy when Shah Alam granted Diwani of Bengal to the English East India Company in 1765. Gradually, the Nizamat and the treasury were shifted from Murshidabad to Kolkata. In 1775, the Supreme Court of Kolkata declared that the Nawab of Bengal had no sovereign power. अलीवर्दी खां के मरने के बाद उनके जो डॉटर सन थे सिराजुद्दौला, उनके साथ बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज शुरू किया। 1765 में उनको पूरी दीवानी वो लोग मुगल से ले चुके थे। To preserve the glorious tradition of Nawabi rule in Murshidabad, Nawab Nazim Humayun Jah built between 1829 and 1837 the magnificent Hazar-Duari Palace. के खानदान से और एक के बाद एक लोग नवाब होते रहे। ये सिलसिला
1829 तक चला। उस वक्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नवाब थे नवाब नाजिम हुमायूं जा, मीर जाफ़र के 5वें पुष्प में से थे, 5th जनरेशन में से थे। उन्होंने ये हज़ारदुआरी पैलेस को उन्होंने बनवाया था। This impressive building is 3-storied and comprises 50 halls and galleries with more than 1,000 real and false doors, and hence the name Hazarduari. The collection in this palace includes arms and weapons, oil paintings, costumes, records and firmans, etc., mostly belonging to the 18th and 19th centuries. After Plassey, the center of activity moved from river Bhagirathi to river Hooghly, where Kolkata was on the way to emerge as capital of Bengal, Bihar and Orissa. In a span of 100 years since its existence, Kolkata was well on the road to transform from a city of swamps to a city of palaces. It grew far beyond the confines of commerce. One look at Kolkata and one can only ponder over how a settlement where Chanakya landed with 30 soldiers became the springboard for the expansion of the empire. New buildings housing the company offices and its officials came up following the European style. Many of such buildings still today, particularly the Governor House, the Big Pond, Lal Dighi and the Writers' Buildings remind us of the legacy of the British Raj. With the establishment of the company as a territorial ruler in Bengal, it became a more formidable instrument of British imperialist expansion. From Bengal, the company gradually moved to other parts of India. The Nawabs of Awadh, the Nizams of Hyderabad, Hyder Ali and Tipu Sultan of Mysore, the Marathas, the Sikhs of Punjab, and many more ultimately had to surrender before the might and the trick of the British.
fair or foul, the end justified the means for the British. Thus, by the mid-19th century, the English East India Company emerged as the undisputed ruler of India, while 2/5 of India's territory remained independent under the local rulers. However, the process of acquisition of Indian territory was not without opposition. Even before the major popular uprising against the British Raj in 1857, a number of popular uprisings spreading over various parts of India testify to the general ferment against the British Raj. One such uprising was against British agent Debi Singh, who was appointed to collect revenue from Dinajpur and Rangpur. Debi Singh's forceful collection of revenues compelled the passive and submissive cultivators to rise in arms. Soldiers were called in to crush the uprising, followed by cruel executions. Mr. Goodlad, the English chief of the district, described the rising as the greatest and the most serious disturbance which had ever happened in Bengal. The Mughals retained their high-sounding titles and their throne in Delhi. But after the revolt of 1857, the Mughal Emperor Bahadur Shah II was sent to exile in Rangoon. The emperor's power now remained confined within the walls of Red Fort in Delhi. With the decline of the Mughal authority, Kolkata emerged as the real center of political power in India. In 1858, the British Crown directly took over the company officials the administration of the British Empire in India, and Kolkata became the capital of the British Indian Territory.
ये वही जगह है जहां 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया, जिसका असर भारत ही नहीं पूरे महाद्वीप पर पड़ा। पलासी के युद्ध का स्मारक, वो युद्ध जिसने नवाबों के दुर्भाग्य की शुरुआत कर दी और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का बेताज बादशाह बना दिया। समय के साथ-साथ इस लड़ाई के सारे सबूत नष्ट हो गए, सिवाय इस वट वृक्ष के। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की यादों में और इतिहास के पन्नों में आज भी उस राजनीतिक परिवर्तन की यादें ताजा हैं जो पलासी की लड़ाई के दौरान वजूद में आए थे। सत्रह सौ 7 में औरंगजेब की मृत्यु से मुगल साम्राज्य के बिखराव और विखंडन के संकेत मिलने लगे। इस दौरान जिन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, उन्हीं में मुर्शीद कुली खां की रहनुमाई वाला आजाद बंगाल भी शामिल था। मुर्शीद कुली खां को उसके राजस्व के बेहतरीन इंतजाम के लिए जाना जाता था। वो एक मामूली दीवान से सूबेदार और फिर बंगाल का राज्यपाल बन गया। सन 1705 के करीब वो अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले आया। तो ये जो मुर्शिदाबाद का जो शुरुआत हुआ, ये मुर्शीद कुली खां से हुआ और 1704 में जब मुर्शीद कुली खां आए थे तभी से शुरू हुआ था। तो मुर्शीद कुली खां के बाद उसके बाद उनके दामाद नवाब हुए सूजा खां, उनके बाद उनके लड़के आए सरफराज खां को मार के जब अलीवर्दी खां आए तो अलीवर्दी खां ने इसको पूरी तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजधानी बनाया था। मुर्शिदाबाद कासिम बाजार के नजदीक था, जो कि गांगेय व्यापार का मुख्य केंद्र था, और शायद यही बात थी जिसे ध्यान में रखकर मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी बना दिया। नई राजधानी में महल, सार्वजनिक कार्यालय और मजहबी इदारे धीरे-धीरे पनपने लगे, लेकिन कटरा मस्जिद के अलावा मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में बनी अन्य इमारतें वक्त की मार को झेल न सकीं। ये कटरा मस्जिद एक 54 मीटर ऊंचे चबूतरे पर कायम है। ईंटों से बनी ये मस्जिद गुंबद वाले 2 मंजिला कमरों की कतार से घिरी है। इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें थीं, जिनमें से अब सिर्फ 2 ही बची हैं। पूरब की तरफ से चढ़ने वाली 14 सीढ़ियों से होकर इस मस्जिद तक पहुंचा जा सकता है। मस्जिद की सीढ़ियों के नजदीक ही दफन हैं मुर्शीद कुली खां के पार्थिव अवशेष। मस्जिद से जुड़े कुछ बिना छत वाले कमरों को मदरसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था।
मुर्शिदाबाद में नवाबों का एक छत्र राज्य करीब 50 साल ही चल पाया। इन नवाबों में नामवर रहे मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। नवाबी शासन के छोटे से दौर में भी इसका सामना कई बाहरी चुनौतियों से हुआ, जैसे अलीवर्दी के वक्त में मराठों ने आक्रमण किया और सिराजुद्दौला के काल में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला कर दिया। बाहरी हमलों के अलावा भीतरी षड्यंत्र और नवाबों के दरबार में मौजूद गुटबाजी ने बंगाल के नवाबों की ताकत कमजोर कर दी। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में कायम की और फिर हुगली से वो कोलकाता चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जॉब चारनाक को मुगल बादशाह से 3 गांव लेने की इजाजत हासिल हो गई। ये थे सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर। इसके लिए उसे स्थानीय जमींदार को सिर्फ 1200 रुपए सालाना देने थे। कोलकाता नदी मार्ग के पास था और स्थानीय बुनकर तथा व्यापारी पहले से ही इस इलाके से तिजारत कर रहे थे। ये बात चारनॉक की नजरों में चढ़ गई और उसने पैर पसारते ब्रिटिश कारोबार के केंद्र के रूप में कोलकाता को चुन लिया। मुगल सम्राट की इजाजत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में कंपनी के कारोबार को संरक्षण देने के बहाने फोर्ट विलियम बना लिया। लेकिन कंपनी की लगातार बढ़ती कारोबारी दिलचस्पी और खासकर कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यापारिक रियायतों के दुरुपयोग जैसी घटनाओं से कंपनी और नवाबों के रिश्तों में खटास आने लगी। जब कारोबारी रियायतों की गलत इस्तेमाल से संबंधित शिकायत का कोई जवाब नहीं मिला, तो सिराजुद्दौला ने अचानक 1756 में फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने कर्नल रॉबर्ट क्लाइव की सरपरस्ती में चेन्नई से और सिपाही भेजकर कोलकाता को दोबारा हासिल कर लिया। मगर बदकिस्मती से मुर्शिदाबाद में नवाब के दरबार में ही सिराजुद्दौला के तख्ता पलट का षड्यंत्र चल रहा था। घोषती बेगम, मीर जाफर और जगत सेठ तथा ओमी चंद जैसे व्यापारियों ने धोखा देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से हाथ मिला लिया। इस षड्यंत्र से बेखबर सिराजुद्दौला चंदन नगर के फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को पछाड़ने की कोशिश में लगा था। (1757) में पलासी के मैदान में जो लड़ाई हुई उसे अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से जीत लिया। मोहनलाल और मीर मदन जैसे नवाब के विश्वस्त सैनिकों के बलिदान मीर जाफर और अन्य षड्यंत्रकारियों के आगे नाकाम हो गए। सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारकर उसे कत्ल कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बतौर इनाम बंगाल की नवाबी सौंप दी। 1757 और 1765 के बीच नवाबों से लगातार रियायतों की नाजायज मांगे की जाती रहीं और वे इन्हें रोकने के लिए कुछ भी न कर सके। नवाब मीर कासिम ने कंपनी के अधिकारियों के चंगुल से छूटने की आखिरी कोशिश की, मगर 1764 में वो कंपनी से बक्सर की लड़ाई हार गया। पलासी की लड़ाई से हासिल सैन्य नियंत्रण को उस वक्त वैधता प्राप्त हो गई जब 1765 में शाह आलम ने बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। धीरे धीरे निजामत और खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता आ गया। 1775 में कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया
कि बंगाल के नवाब के पास प्रभु सत्ता संबंधी कोई ताकत नहीं रही। अलीवर्दी खां के मरने के बाद उनके जो डॉटर सन थे सिराजुद्दौला, उनके साथ बैटल ऑफ पलासी होने के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज शुरू किया है। 1765 में उनको पूरी दीवानी लोग मुग़ल से ले चुके थे और बंगाल से उसकी राजधानी उठाकर वो कलकत्ता ले गए 1773 में। उसके बाद यहाँ जो नवाब लोग गुजरे रहे, उसके बाद जो लोग आए सब मिर्ज़ा जाफ़र के ख़ानदान से और एक के बाद एक लोग नवाब होते रहे। ये सिलसिला 1829 तक चला। उस वक्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नवाब थे नवाब नाज़िम हुमायूं जा, मिर्ज़ा जाफ़र के 5वें पुष्प में से थे, 5th जनरेशन में से थे। उन्होंने ये हज़ारदुआरी पैलेस को उन्होंने बनवाया था। ये प्रभावशाली इमारत 3 मंजिला है और इसमें 50 कमरे और गैलरियां हैं। साथ ही 1000 से ज्यादा वास्तविक तथा छद्म दरवाजे हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा हजारद्वारी। इस महल में हथियारों, तैलचित्रों, परिधानों, रिकॉर्डों और फरमानों का संग्रह है जो 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का है। पलासी के बाद गतिविधियों का सिलसिला भागीरथी नदी से हटकर हुगली पर आ गया, जहां कोलकाता बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी के रूप में उभर रहा था। अपने उदय की 100 वर्ष की अवधि में कोलकाता दलदल के शहर से महलों का शहर बनने की राह पर था। ये कारोबार की परिधि से भी बाहर निकलकर लगातार विस्तार पा रहा था। ये हैरत की बात है कि कोलकाता नामक वो बस्ती जहां चौरनॉक अपने सिर्फ 30 सिपाहियों के साथ आया था, उसके साम्राज्य के विस्तार का जरिया बन गई। कंपनी और इसके अधिकारियों के दफ्तर यूरोपीय अंदाज में बनने लगे। ऐसी कई इमारतें आज भी मौजूद हैं, खासकर गवर्नर हाउस, लाल दिघी नामक बड़ा तालाब और राइटर्स बिल्डिंग, जो आज भी अंग्रेजों के राज की याद ताज़ा करती हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक क्षेत्रीय शासक के बतौर जम गई,
तो यह ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार का एक अभेद्य हथियार बन गई। कंपनी बंगाल से देश के अन्य राज्यों की तरफ पैर पसारने लगी। अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम, मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान, मराठों, पंजाब के सिखों और अन्य कई शासकों को अंग्रेजों की ताकत और चालबाजियों के आगे समर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों का सिद्धांत था कि अपना लक्ष्य हासिल करो, चाहे रास्ता सही हो या गलत। लिहाजा 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का एक ऐसा शासक बनकर उभरी जिसकी प्रभुसत्ता के बारे में कहीं कोई शंका शेष नहीं थी। लेकिन अभी भी भारत का करीब 40% हिस्सा स्थानीय शासकों की रहनुमाई में आजाद बना रहा। इन भारतीय इलाकों को हड़पने की कोशिशों का बाकायदा पुरजोर विरोध होता रहा। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के नुमाया विद्रोह से पहले भी भारत के कई हिस्सों में कई नामवर विद्रोह होते रहे और ये साबित करते रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में नफरत कूट-कूट कर भरी है। ऐसा ही एक विद्रोह अंग्रेजों के एक एजेंट देवी सिंह के खिलाफ हुआ, जिसे दिनाजपुर और रंगपुर से राजस्व इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया था। देवी सिंह जिस तरह से ताकत के जोर पर राजस्व इकट्ठा किया करता, उससे सहनशील और सीधे साधे किसानों ने भी हथियार उठा लिए। बालू का ढेर फिर से बना माटी रे, जागिरे जागिरे जागिरे। इस विद्रोह को दबाने के लिए सिपाहियों को तलब किया गया और इसके बाद निर्मम कत्लेआम शुरू हुआ। जिले के अंग्रेज सदर मिस्टर गुडलैट ने इसे बंगाल की सबसे नुमाया और सबसे गंभीर विद्रोह की संज्ञा दी। वसूली की क्या सूरत है? सर, सूरत हाल बहुत ही नाजुक और पेचीदा है। कोई भी किसान लगान देने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसी बात है तो उन पर थोड़ी सी सख्ती ज्यादा करो। उधर दिल्ली में मुगल अपने भारी भरकम खिताब और सिंहासन संभाले हुए थे, मगर 1857 के गदर के कुचल जाने के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। अब बादशाह की ताकत का दायरा सिमटकर दिल्ली के लाल किले की दीवारों के भीतर ही रह गया। मुगलों की ताकत खत्म होने के साथ ही कोलकाता भारत में सियासी ताकत का असली केंद्र बन गया। (1858) में ब्रिटिश ताज ने भारत में मौजूद ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासन कंपनी अधिकारियों से अपने हाथ में ले लिया और इस तरह कोलकाता ब्रिटिशों के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र की राजधानी बन गया।